सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए, प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। नो। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर अमूल राम सिंह कोले। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नहीं बस। सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी, इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली, और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर, प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है, वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, I request honorable members to rise in their places and observe a moment silence as a mark of respect to the memory of those who laid their lives in that dastardly attack. तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में लगातार हंगामा यहां पर हो रहा है। तवांग में जो कुछ हुआ, चीनी और भारतीय सैनिक जो आपस में भिड़ गए थे, जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश चीनी सैनिकों की ओर से की जा रही थी, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। जवाब देखिए बाकायदा खुद 12 बजे यहाँ पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, और राज्यसभा में 2 बजे का वक्त है। माननीय एलओपी। Sir, I have given notice under 267 Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. Sir, I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of my intention to move the following motion for the suspension of business listed for 13 December 2022. Our national security and a territorial integrity is being impinged upon by brazen Chinese transgressions as the government remains a mute spectator. The valor of our armed forces in Galwan Valley, Ladakh is well known, but China has brazenly transgressed into our territory since April 2020. The illegal and unprovoked Chinese transgressions upon Y Junction in Dipiang Plains continues till date. Similar is the state of Chinese transgressions into Gogra and Hot Springs area in eastern Ladakh. Not only this, Chinese built up next to Pangong Lake area, including building of PLAs, divisional headquarters, army garrisons, weapon shelters for artillery, anti-aircraft guns and armored carriers is being continuously ignored by our government. Government also remains oblivious to the Chinese construction of a new Radom and 2 high Pangong
So bridge also with decks on both sides, facilitating easy movement of Chinese troops has also been brushed aside. Despite demand to ensure status quo ante as April 2020, China has refused to धन्यवाद माननीय vacate. No, एक मिनट आप सुनिए. आपकी नोटिस माननीय चेयरमैन साहब को You know, आपने पढ़ लिया. since back, Finish in 1 minute. एक This time could have been used for that. to vacate our territory and has been deliberately taking shelter beyond the statement of our Prime Minister dated 20th June 2020, saying that no one has entered into our territory. Even the ongoing The notice is with talks with the Chinese. The notice is with Honorable Chairman. He will No, decide. this is the notice. You have already I am reading the content of notice. I am reading the content of notice so that it should go in the slot, and I want to reply according to that. माननीय एलओपी आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है. No one has entered into our Please, the territory. notice is under Even the consideration of Honorable outgoing Chairman. He talks. will decide. Please, माननीय Deputy Chairman, sir. please, Deputy Chairman, sir. please, The Honorable please, Defense Minister Shri माननीय Rajnath एलओपी, Singh ji is you slated have to make already, a you statement have already explained. regarding the Yangtze आपने बता दिया incident. पूरा. It's under माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट, आपने अपने नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया. sir. प्लीज प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir. माननीय एलओपी को Honorable- प्लीज माननीय प्लीज The Honorable Defense Minister. आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. अब आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया. उन्होंने अपनी नोटिस बताई. प्लीज अपने सीट्स ले. Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस sir. प्लीज. The Honorable आपकी बात Defense ही रिकॉर्ड Minister पे जा Shri रही है. Rajnath Singh ji बोले. is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए. प्लीज मैडम प्लीज बैठ जा. प्लीज एक मिनट माननीय प्रमोद जी. माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर. माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी. आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने. ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा. आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं. माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप. जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं. 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए. प्लीज 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे. पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल. राव इंद्रजीत सिंह Deputy Chairman, sir. प्लीज 12:30 बजे बयान होगा. to lay on the table of the 12:30 बजे बयान होगा. 12:30 बजे SCL number 1 in today's revised 12:30 बजे business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे. प्लीज आदरणीय सभापति महोदय, आपके निर्देश से आज की संसदीय कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को समर्पित करता हूं. डॉक्टर भागवत कराड. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं. श्री भगवंत खुबा. संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज
सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। Dr. Bhagwat Karad, Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Deputy Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper. और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, भारी हंगामा हो रहा है। लोकसभा की कार्यवाही तो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में भी विपक्ष का जमकर हंगामा हो रहा है तवांग के मुद्दे पर। जी देखिए, ये इस बात की उम्मीद थी, और क्योंकि ये मामला जिस तरह से गरमाया है, विपक्ष की तरफ से लगातार कई लोगों ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने 267 के तहत नोटिस भी दिया था राज्यसभा में कि उस पर चर्चा की जाए और उस पर बहस सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना 9 तारीख की हुई जब भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से उलझे, तो इस मामले पर सरकार की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है। और इसीलिए राज्यसभा में देखिए, जो लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल, वो खड़े हुए, उन्होंने ये बात को कहा कि 12 बजे लोकसभा में होना है और इसके ठीक बाद वो राज्यसभा में करीब 12:30 बजे आएंगे, क्वेश्चन आवर के बीच में आएंगे और वो उस दौरान अपना स्टेटमेंट देंगे। तो इसलिए जो तमाम जो चिंताएं दर्ज की जा रही है, उन चिंताओं का जवाब ही रक्षा मंत्री देंगे। लेकिन उसको लेकर संतुष्ट नहीं थे। थोड़ी देर पहले ओवैसी से हमने बात की, ओवैसी भी इसी बात को लेकर दोहरा रहे थे कि सरकार सच्चाई सामने नहीं रख रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 9 तारीख की घटना जो भी हुआ, जो तवांग में जो भी चीजें हुई, जो पाकिस्तानी जो पीएलए और भारतीय सेना के बीच में जो हाथापाई हुई, वो क्या वजह थी, किस तरह से हुई, कब हुई, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी जो है रक्षा मंत्री 12 बजे लोकसभा में रखने वाले हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक थी, वो भी बैठक थोड़ी देर पहले तक जारी थी, जिसमें रणनीति बनाई गई और यही तय हुआ है कि पूरी जो वस्तुस्थिति, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो सदन में रखी जाएगी और रक्षा मंत्री इस बात को रखेंगे और इसके बाद जो भी बात होती है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, सरकार को घेरने की तैयारी है और उम्मीद है कि आज शायद ही सदन चल पाए, क्योंकि विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।